Good afternoon, everyone. I am going to teach the P4, that is learning assessment of integrated behavior students. In this paper, I am going to cover Unit 1, that is called assessment, evaluation and learning. In Unit 1, there are 3 bits, bit 1, bit 2, bit 3. But today I am going to cover the first bit, that is assessment and evaluation, meaning purpose of assessment, then what is evaluation and purpose of evaluation, and their interrelationship between assessment and evaluation. The total unit is covered into 3 videos, maximum two videos, but total you first bit is covered into 2 videos. First, assessment meaning purpose. Second, in my second lecture I will cover what is evaluation, meaning and purpose, plus what interrelationship between assessment and evaluation. So today I am going to cover the first, that is assessment, meaning and purpose. So first of all, before going to the assessment, the total unit is, that is assessment, evaluation and learning है ना. तो आज हम पढ़ेंगे, बिफोर गोइंग टू दिस total bit, I am going to focus on what is learning. What is learning? Learning का मतलब क्या होता है? तो learning, it means that is the change in behavior. How learning is change in behavior? Definition तो है, the learning is the change in behavior. How learning is change in behavior? So it can be explained that a learner, when entering into classroom, into a learning environment or entering into classroom, the learners have some previous knowledge. है, तो इस नॉलेज को हम क्या कहते हैं, और इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? एंट्री बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट. that is mentioned, that is denoted in EB, but entry behavior. During the process of learning and lecture, it is called learning behavior. जब टीचर एक बच्चों को पढ़ाता है, स्टूडेंट को पढ़ाता है, वो जो प्रोसेस है ना, उस टीचिंग का प्रोसेस है ना, वो टीचिंग का प्रोसेस को क्या कहते हैं? लर्निंग बिहेवियर, which is acquired by the student. तो एक तो हो गया एंट्री बिहेवियर, जो बच्चों का जो प्रायर नॉलेज है उसको कहते हैं हम एंट्री बिहेवियर, और लर्निंग बिहेवियर इसको कहते हैं when the learning is continuing, उसको कहते हैं लर्निंग बिहेवियर. उसके बाद क्या होता है ना, जब आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर और लर्निंग देयर इज चेंज इन एंट्री बिहेवियर. जब एक टीचर ने बहुत सारे बच्चे लोग हैं, जो बच्चे लोग उनका प्रीवियस नॉलेज कुछ तो रहेगा ना, कुछ तो होगा ना, प्रायर नॉलेज तो कुछ तो होगा.
तो जब टीचर उनको पढ़ाता है उसके बाद टीचर कुछ नया चीज़ सीखते हैं। नया चीज़ सीखने का मतलब नया नॉलेज गेन करते हैं, नया कॉन्सेप्ट जानते हैं, नया स्किल डेवलप होता है। उसे क्या होता है, उनके अंदर बड़े चेंजिंग बिहेवियर शो करता है। चेंजिंग बिहेवियर दैट इज कॉल्ड टर्मिनल बिहेवियर, टीबी, उसको मेंशन करते हैं टीबी में। तो व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर इज इक्वल टू डेल बी, मेंशन कर चेंज इन बिहेवियर को हम डेल बी में लिखते हैं। तो चेंज इन बिहेवियर इज इक्वल टू टर्मिनल बिहेवियर माइनस एंट्री behavior. So learning is the change in behavior, that is change in the thinking, knowledge, skill, belief, reasoning of the students after acquiring certain knowledge from the teacher. तो that is called learning. बस थोड़ा सा था, उसको मैं डिस्कस कर दिया। उसके बाद हम असेसमेंट पे आएंगे। तो असेसमेंट के जब डिस्कशन करेंगे, असेसमेंट के पहले हम एक चीज़ मेंशन करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मेजरमेंट, मेजरमेंट किसको कहते हैं? व्हाट इज मेजरमेंट? तो मेजरमेंट इज refers to the process by which the attributes, dimensions or characteristics of the objects or a person are quantified. तो इसका मतलब क्या है मेजरमेंट? जैसे कि चलो सपोज तुम एक शॉप पे गए हो, उसके कुछ सामान खरीदना था तुमको, तो क्या करे, तुम शॉप में गो, बोलो 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो दाल दे दो, और जो भी चीज़ तुम खरीदना चाहते हो उसको बोल दे। तो कितना अमाउंट में खरीदना चाहते हो उसके बारे में थोड़ा मेंशन कर दी। तो 1 kg का जो राइस है, 1 kg का जो दाल है, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक डाटा इज क्वांटिफाइड। जिसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्वांटिटेटिव डाटा बोलते हैं। तो मेजरमेंट is quantitative in nature. Quantitative in nature, it means it can be expressed in numeric form. तो उसके बाद क्या होता है, मेजरमेंट क्यों यूज करते हैं? जो टीचिंग लर्निंग पर्पस में मेजरमेंट को कैसे यूज करते हैं? क्या है ना, हम जब एक टीचर ने एक क्लास में एक टेस्ट करता है, सपोज 30 मार्क्स का कोई टेस्ट करता है, तो 30 मार्क्स का टेस्ट सारे बच्चे देते हैं, सारे बच्चे जो है देते हैं। तो 30 मार्क्स से जो भी बच्चे, कोई बच्चे 24 आउट ऑफ 30, कोई बच्चे 25 आउट ऑफ 30। तो इससे क्या होता है, बच्चों मेजरमेंट से क्या होता है, टीचर को एक आइडिया मिल जाता है कि बच्चों जो चीज़ मैं सिखाता हूँ वो उसको ठीक से सही तरीके से सीख पाते हैं या नहीं पाते। उस जो सिखाने का चीज़ को एक नंबर के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं। तो मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, मैंने बोला था क्वांटिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स, but in order to measure the learning achievement of the student in different subjects, the teacher use tests or exams and then assign them grades. मैं अभी जो बोला है ना, एक टेस्ट करेंगे उसके बाद कोई नंबर निकलेगा, उसको एक्सप्रेस करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसको मेजरमेंट कहते हैं। बट इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। In measurement, the numerical valuation is the main priority of a teacher. बच्चों को जो अचीवमेंट, जो परफॉर्मेंस है, उसको नंबर के हिसाब से शो करना, उसको मेजरमेंट कहते हैं। तो मेजरमेंट के बाद आता है असेसमेंट। तो फर्स्ट आता है मेजरमेंट, सेकेंड आता है असेसमेंट। व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट किसको बोलते हैं? Simply it means the process of testing or extra inference about someone's knowledge, ability or skills.
क्या है ना, टीचर क्लासरूम में जो भी चीज़ पढ़ाता है स्टूडेंट को, टीचर किसको पढ़ाता है, स्टूडेंट को जो पढ़ाता है, वो बीच बीच में क्या करता है ना, एक सिस्टमेटिक वे में क्या करता है, उस वो जो सारे का स्टूडेंट का परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट है उसको असेस करता है। असेस करता मीन उसको चेक करता है, बच्चे लोग मैं जो पढ़ाता हूँ वो ठीक से पढ़ पाते हैं नहीं, जो मैं मेथड जो भी मेथड में उनको पढ़ाता हूँ वो मेथड समझ में आता है नहीं आता है। तो क्या है ना, टीचर, दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बट दिस इज सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो असेसमेंट्स ऑलवेज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। असेसमेंट ऑलवेज ए गोल ओरिएंटेड, टीचर का एक गोल होता है बच्चों को असेस करने में। बट इन एजुकेशन कंसेप्ट मैंने तो बोला ना अभी, जो टीचर है ना वो बच्चों को क्या असेस करते हैं, बच्चों का इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है, परफॉर्मेंस अच्छे हो रहा है नहीं हो रहा है, उस बारे में जानने के लिए वो असेसमेंट जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करता है। असेसमेंट के करने का एक पर्टिकुलर इंटेंशन होता है, एंड नॉट ओनली पर्टिकुलर इंटेंशन बट हैव ए टीचर हैव ए सजेशन टू द स्टूडेंट्स हाउ टू इम्प्रूव। कुछ बच्चे लोग कुछ बच्चों का मैथ अच्छा होता है, कुछ को नहीं होता है, तो मैथ का जो बच्चे मैथ्स नहीं होता है उनको को मैथ्स के जो सब्जेक्ट है उसमें उनका इम्प्रूवमेंट के लिए टीचर को उनको सजेशन देता है, तो वो चीज़ करो कि टेबल्स याद करो, जो भी चीज़ है उस हिसाब से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो उनको सजेशन देता है। असेसमेंट प्रोसेस में हु असेस, एक क्वेश्चन आता है हु असेस, द टीचर असेस, टू हुम असेस, किसको असेस करता है, स्टूडेंट को असेस करता है, फॉर ए पर्टिकुलर इंटेंशन so it is the responsibility of the teacher to assess the ability skills of the students in different areas of their interest. So assessment is the method of acquiring, reviewing and using information about someone and something so that to make improvement where is necessary. ये बात अभी मैं बोला है, जो भी टीचर पढ़ाता है, जो भी स्टूडेंट को पढ़ाता है, कुछ खामियां रहता है उनके अंदर में, कोई चीज़ में अच्छे होते हैं, कोई चीज़ में बुरा होते हैं। तो क्या करता है टीचर, क्या करता है स्टूडेंट को जो भी चीज़ उनमें कमियां हैं उसको डिटेक्ट करता है, उसके बाद वो उसका सॉल्यूशन देता है। तो असेसमेंट इज ए ऑनगोइंग इंटरेक्टिव प्रोसेस। असेसमेंट इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस इन विच टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। देयर इज टू पार्टीज, मैंने अभी बोला है एक टीचर है एक स्टूडेंट है। टीचर को हम असेसर बोलते हैं, टीचर को हम क्या बोलते हैं, असेसर, और स्टूडेंट को बोलते हैं असेसी, ASSESSEE, असेसी। समझ गए? तो व्हाई इन क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट असेसी इज समवन हु मीन्स क्या है, स्टूडेंट्स इज बीइंग असेस्ड बाय हुम, द टीचर। तो असेसमेंट मेनली फोकस ऑन determine the effectiveness of the overall performance of the assessee. Assessee means student, and area of improvement. area of improvement के बारे में कौन बताता है, किसको बताता है, टीचर बताता है स्टूडेंट को, किस एरिया में तुम वीक हो उसको सुधारना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहिए। हाँ, तो असेसमेंट मेजरमेंट is always quantitative in nature, but assessment it may be, एक मिनट, assessment it may be quantitative or qualitative in nature. और एक इम्पोर्टेंट बात है असेसमेंट में, टीचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट को असेस करना है, ठीक है।
बट यहाँ क्या होता है ना, टीचर लोग भी खुद को असेस करते हैं। कैसे करते हैं? सेल्फ असेसमेंट करते हैं। किसकी बारे में करते हैं सेल्फ असेसमेंट? उनके जो पढ़ाई का जो मेथड है, उनका पेडागोजी, बॉडी नॉलेज क्या है, उनका कंटेंट नॉलेज अच्छा है नहीं है, कंटेंट नॉलेज जो भी है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनके जो सब्जेक्ट है, उनके जो चैप्टर है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे से जानकारी होना चाहिए, कंटेंट नॉलेज। तो टीचर का मेन इंपॉर्टेंट फोकस है उनका कंटेंट नॉलेज अच्छा होना चाहिए। जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, जो मेथड ऑफ टीचिंग है, वो भी अच्छा होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, क्लासरूम में बहुत टीचर क्या कहता है, उनका जो मेथड ऑफ टीचिंग अच्छा नहीं होगा ना, बच्चे लोग बोरिंग हो जाते हैं। तो इसीलिए टीचर भी खुद को असेस करना चाहिए कि किस चीज़ में मेरे को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या नया मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, आईसीटी का यूज़ किसे अच्छे से करना चाहिए, सो दैट स्टूडेंट विल बी मोटिवेटेड। सो ड्यूरिंग द असेसमेंट टीचर इज गिविंग रिमेडियल मेजर्स मीन्स क्या है जे एक तरह का हेल्प करता है टीचर जो स्टूडेंट का इम्प्रूवमेंट में। तो टीचर क्या करते हैं, कुछ तरह का हेल्प करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट। तो दिस इज द असेसमेंट। तो असेसमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो गया, उसका मीनिंग क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में थोड़ा जानकारी हो गया। तो उसके बाद आता है पर्पस। पर्पस क्या है, असेसमेंट करने का पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? तो असेसमेंट करने का पर्पस है, फर्स्ट है असेसमेंट ड्राइव्स इंस्ट्रक्शन। असेसमेंट ड्राइव्स इंस्ट्रक्शन। सेकेंड है असेसमेंट इन्फॉर्म्स स्टूडेंट्स ऑफ देयर प्रोग्रेस। थर्ड है असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग। फोर्थ है असेसमेंट इन्फॉर्म्स टीचिंग प्रैक्टिसेस। मैंने अभी सारे चीज़ को डिस्कस कुछ कर दिया हूँ, उसको अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। यहीं पे वो जो पॉइंट है ना, उसके बारे में अच्छे से बताना चाहता हूँ। आप क्या है, उस चार्टर 4 ऑब्जेक्टिव पर्पज है, 4 पर्पज। तो वो जो फर्स्ट पर्पज है असेसमेंट ड्राइव्स इंस्ट्रक्शन, क्या है यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट में असेसमेंट ड्राइव्स इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है ना, प्री टेस्ट नीड बेस्ड असेसमेंट इन्फॉर्म्स द टीचर। है जो एक टेस्ट करेंगे टीचर, उसके बाद क्या पता चलेगा टीचर को, व्हाट द स्टूडेंट्स नो देन व्हाट द स्टूडेंट्स डोंट नो। किस जो भी चैप्टर को, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता है एक टीचर, जो सब्जेक्ट का जो चैप्टर है उसके बारे में जो थोड़ा बहुत प्रीवियस नॉलेज है क्या नहीं है, कौन सा स्टूडेंट जानता है क्या, कौन सा स्टूडेंट नहीं जानता है क्या, जानता है वो एक स्टूडेंट क्या नहीं जानता है। तो इसके बारे में है असेसमेंट ड्राइव्स इंस्ट्रक्शन। फ्रॉम दिस टीचर कैन आइडेंटिफाई द गैप्स बिटवीन द स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्टूडेंट डिजायर्ड आउटकम। एग्जिस्टिंग नॉलेज मीन्स जोड़ा को प्रायर नॉलेज का जो प्राइमरी नॉलेज क्या है। सपोज एक बच्चे तीसरी क्लास से चौथी क्लास के अंदर जाता है, तो क्या है ना, सारे सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो बच्चा क्या करता है ना, उस टीचर क्या करता है, बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है, जो क्लास 3 में जो भी मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटर रिलेटेड होते हैं क्लास 4 के अंदर। तो थर्ड में बच्चों का जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सो दैट द स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, स्टूडेंट कैन लर्न वेल इन स्टैंडर्ड 4। उनका जब बस बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट को याद करेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट को इंटरलेट करेंगे, नहीं हो पाएगा ना। वो सारे क्लास में दिखता है, वो चीज़ नहीं है। थर्ड फोर्थ में जो बच्चे 6 से 7 तक जाते हैं उनके बारे में तो ऐसा ही होता है। तो क्या करता है टीचर, चेक करता है उनको क्या पता है क्या नहीं पता है।
So from this teacher can identify the gap between the student's existing knowledge, student desired outcome. क्या है, जो स्टूडेंट का जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है और डिजायर्ड आउटकम, उनका अंदर में जो गैप है उसको वो डिटेक्ट करता है. तो असेसमेंट का मेन पर्पज यही है. तो सेकंड है असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग. Assessment practice must send the right signal to the students about what to study, how to study. What to study means follow systematic and interlinking of the concept. मैं अभी बोला है ना, जो भी कंसेप्ट है उसको सिस्टमेटिक वे में फॉलो करना है. वो जो कंसेप्ट है उसको अंदर से इंटरलिंकिंग एंड इंटर रिलेटेड करना है. सेकेंड है जो हाउ टू स्टडी, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर. द बेसिक्स फर्स्ट है असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग रे. फर्स्ट है व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी. सेकेंड है हाउ टू स्टडी. व्हाट टू स्टडी इज प्योरली फॉर स्टूडेंट्स, सॉरी, what to study is purely for teachers and how to study is purely for teachers. What to study में क्या होता है ना, follow the systematic और method of teaching, follow the systematic and interlinking the concept. ये कौन करता है, टीचर करता है. सेकेंड हाउ टू स्टडी, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को सो दैट द स्टूडेंट विल बी बेनिफिटेड. कैसे पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट को. तो इसमें क्या होता है, टीचर फॉलो करता है डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग. कौन लेक्चर मेथड फॉलो करता है टीचर, तो उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड फॉलो करता है. बहुत सारा मेथड है, उस सारी चीज़ को फॉलो करता है. फ्रॉम असेसमेंट टीचर शुड नो दैट व्हिच मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन और मेथड ऑफ टीचिंग इज सुटेबल फॉर द स्टूडेंट. Then third point is assessment informs students of their progress. इसमें क्या होता है ना, it provides students with a sense of what they know and don't know about the subject. इसमें क्या होता है ना, स्टूडेंट को प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए असेसमेंट इन्फॉर्म करता है. किसको करता है, टीचर का करता है. किसके बारे में करता है, स्टूडेंट के बारे में. स्टूडेंट का कौन सा बारे में करता है, प्रोग्रेस के बारे में, इम्प्रूवमेंट बारे में. स्टूडेंट का इंटरेस्टिंग एरिया क्या है. सो असेसमेंट इन्फॉर्म स्टूडेंट ऑफ देयर प्रोग्रेस. असेसमेंट मस्ट क्लियरली मैच द content, the nature of thinking and skill taught in the class. तो टोटली डिपेंड करता है टीचर कैसे स्टूडेंट को पढ़ाएगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहिए टीचर को. और क्या है ना, स्टूडेंट का प्रोग्रेस को मेजर करना चाहिए थ्रू असेसमेंट. तो थ्रू फीडबैक फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर मीन्स टीचर्स, स्टूडेंट्स बिकम अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. क्या है ना, हम टीचर लोग टेस्ट करते हैं, उसके बाद उनका प्रोग्रेस मेजर करते हैं स्टूडेंट का. तो क्या है, एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है. फीडबैक से पता चला जाता है क्या स्टूडेंट का स्ट्रेंथ एरिया कौन है और वीक एरिया कौन है. स्टूडेंट किस एरिया में अच्छा जानकारी है, किस एरिया में उसका जानकारी अच्छा नहीं है. Then fourth, assessment informs teaching practices. Assessment informs teaching practices. तो इसमें क्या होता है, it reflects the effective method of teaching by the teacher in the classroom. The knowledge from the feedback indicates to the teacher how to improve the method and approach of teaching for effective teaching learning environment in classroom. असेसमेंट इन्फॉर्म्स टीचिंग प्रैक्टिसेस. इसका मतलब क्या है, जो भी टीचर है जिस क्लास में पढ़ाते हैं उनका जो मेथड ऑफ टीचिंग है
और बच्चों को वो जो मेथड अच्छा लगता है या नहीं लगता है, उसके बारे में जानकारी मिल जाता है थ्रू असेसमेंट। सो असेसमेंट इन्फॉर्म द टीचिंग प्रैक्टिसेस। जो भी मेथड टीचर पढ़ाता है, वो जो मेथड ऑफ टीचिंग वो इफेक्टिव है और नॉट इफेक्टिव, उसके बारे में पता चल जाता है असेसमेंट के थ्रू के अंदर। तो असेसमेंट का मतलब वही है, क्या है ना, असेसमेंट के थ्रू से क्या है, टीचर को सब चीज़ का पता चल जाता है। स्टूडेंट का इम्प्रूवमेंट कैसा है, नया स्किल डेवलप हुआ है नहीं, उनका नॉलेज में अपग्रेडेशन हुआ है नहीं, वो नया जो चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं नहीं, तो सारे चीज़ के बारे में पता चल जाता है। तो इसलिए असेसमेंट इज नेसेसरी। सो असेसमेंट इज नेसेसरी इन टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। सो दिस मच फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, देन व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। थैंक यू।